Hello everyone. Today the topic of our discussion is Victorian age in English literature, history, characteristics and major writers and work. These are the major writers of Victorian age. The time period of Victorian age is 1837 to 1901. The Victorian age is one of the most significant and influential period in English literature. It is named after Queen Victoria, whose reign lasted from 1837 to 1901. This era witnessed remarkable development in industry, science, education, politics, and social life. Literature during this period reflect the hopes, achievements, conflict, and challenges of Victorian society. Victorian writers explore the themes such as social reform, industrialization, poverty, morality, religion, class difference, and human relationship. The age is often considered a bridge between Romanticism and modernism because it retained some romantic ideas while addressing realities of rapidly changing world. The Victorian age is named after Queen Victoria, and its time period is from 1837 to 1901. Victorian writers explore such themes such as social reform, industrialization, poverty, morality, religion and class difference. ये हमें याद रखना है कि जो विक्टोरियन एज के राइटर्स हैं उनकी जो मेन थीम थी वो क्या थी. उनकी मेन थीम थी सोशल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, poverty, morality, and religion. Historical background. The Victorian age was characterized by tremendous social and economic transformation. Industrial revolution changing Britain from agricultural society into industrial nation. The Victorian age is characterized by tendency of social and economic transformation. It is the age of social and economic transformation. The industrial revolution changed Britain from agricultural society to industrial nation. ये क्या है, ये एक चेंज था. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से चेंज ब्रिटेन फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी इनटू एन इंडस्ट्रियल नेशन. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो अपना ब्रिटेन था वो चेंज हो गया. पहले ब्रिटेन एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, तो एग्रीकल्चरल नेशन था. लेकिन जब यह चेंज आया, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, तो यह एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्री का विकास बहुत ही ज्यादा होने लगा. Factories, railways, and urbanization brought progress, but also created problems such as overcrowding, poverty, poor working condition. Factories, railway, and urbanization. Three main characteristics है. Factories है, railway है, urbanization है. Brought progress, इसकी वजह से progress हुई, but also created problems such as overcrowding and poverty and poor working condition. तीन चीजें आई. फैक्ट्रीज का विकास हुआ, रेलवे आई, अर्बनाइजेशन आई, ये तीनों चीजें बढ़ी. लेकिन इसकी वजह से पॉवर्टी और पुअर वर्किंग कंडीशन और ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम भी सामने आई. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा चेंज था, जिसमें लोग एग्रीकल्चर से जो इंडस्ट्रियल लाइफ है उसकी तरफ बढ़ने लग गए थे. लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आए. तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसकी वजह से क्या है, ओवर क्राउडिंग आई, पॉवर्टी आई और पुअर वर्किंग क्लास कंडीशन आई. तो पुअर लोगों की कंडीशन पुअर होने लग गई. Scientific discoveries also changed traditional belief. The publication of on the origin of the species by Charles Darwin raised the question about religion and human existence. ये टाइम जो था इसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज भी आई. तो साइंटिफिक डिस्कवरीज जब स्टार्ट हो गई थी, तो इसकी वजह से जो लोगों का भगवान में विश्वास था वो कम होने लग गया. तो हमें ये याद रखना है कि जो विक्टोरियन एज है इसमें साइंटिफिक बुक आई, जैसे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक आई. तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने ये बताया कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक विकास है, उसके तरह हुए हैं. पहले बंदर, फिर उसका ग्रोथ हुई, इस तरह से जो ह्यूमन बींग है उसका डेवलपमेंट हुआ है. तो जो क्वेश्चन था जो हम आज तक रिलीजन ने हमें दिया था कि जो हमारा जन्म है वो किसकी वजह से हुआ है, एडम और ईव की जो स्टोरी है उसके ऊपर बेस्ड था. लेकिन अब चार्ल्स डार्विन ने जो साइंटिफिक बुक दी
द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, इसकी वजह से जो रिलीजन है उसके ऊपर क्वेश्चन उठने लग गए। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो साइंटिफिक बुक है सच एज द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, इसकी वजह से लोगों का जो रिलीजन में विश्वास है वो कम होने लग गया था। At the same time, British Empire expanded across the world, making Britain a global power. A Victorian literature reflects these social, political, and intellectual changes. At the same time, British Empire expanded across the world. जो ब्रिटिश एम्पायर था वो सारे के सारे देशों में फैलने लग गया था। जब हमारा इंडिया देश है इसमें ब्रिटेन का, ब्रिटिश लोगों का एक बार एम्पायर रहा है, तो इस तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर है वो सारे के सारे देश में फैलने लग गया। और ब्रिटिश ग्लोबल पावर, विक्टोरियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट दिस सोशल एंड पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल चेंज। और जो विक्टोरियन राइटर हैं उन्होंने ये सोशल और पॉलिटिकल चेंज को अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट किया है। तो हमें यहाँ पर जो याद करने वाली बात है वो क्या है, 3 बातें हमें याद रखनी है। जो विक्टोरियन एज है इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग जो एग्रीकल्चर में अपनी लाइफ को जी रहे थे उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्रियल वर्क है उसमें जाने लग गया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका विकास होने लग गया। और सेकंड है, इस टाइम पर साइंटिफिक बुक आए जैसे कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। इसकी वजह से जो लोग हैं उनका रिलीजन में जो विश्वास था वो कम होने लग गया। तो उन्होंने साइंटिफिक वे से जो ह्यूमन बीइंग है उनकी ग्रोथ है उसके बारे में जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो बढ़ी, तो उनका रिलीजन में विश्वास कम हो गया। थर्ड है ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है वो अपना पावर को दूसरे देशों में फैला रहा था। तो जो ब्रिटिश एम्पायर है वो अपनी पावर को दूसरे देशों में फैला रहा है, फैला रहा था। तो राइटर्स ने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके बारे में भी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो हमें ये 3 बातें याद रखनी है जिससे हमारे जो विक्टोरियन एज है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो याद हो जाएगी, उसको हम अपनी मेमोरी में डाल लेंगे और वो हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इसको हम अच्छे तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो हमें ये 3 चीजें याद रखनी है और इसके साथ हमारा जो विक्टोरियन एज का जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर रियलिज्म। Victorian writer focus on the realistic representation of life rather than imagination and emotion. जो अपनी रोमांटिक एज थी, जो अपनी रोमांटिक एज थी उसमें जो राइटर है वो इमेजिनेशन और इमोशन है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन जो विक्टोरियन राइटर है फोकस ऑन रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, इन्होंने लाइफ की एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। They portrayed everyday experience, social problem and human struggle. तो उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग की रियल सिचुएशन है उसको प्रेजेंट किया। इसकी वजह से उन्होंने जो एवरीडे एक्सपीरियंस है उसके उसके साथ अपने वर्क को प्रेजेंट किया। और सोशल प्रॉब्लम, तो उन्होंने जो सोशल प्रॉब्लम है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम वो देख रहे हैं उसके बारे में लिखा। और ह्यूमन स्ट्रगल, जो ह्यूमन है वो किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहा है तो उसके बारे में उन्होंने लिखा। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी शो कर सकते हैं। नोवेल ऑफ्टर डिपिक्टेड ए लाइव ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास। जो नोवेल्स हैं वो अक्सर किसके बारे में, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वर्कर्स और मिडिल क्लास है उसके बारे में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल क्रिटिसिज्म। Many Victorian writers used literature to expose social evils such as poverty, child labor, inequality, and injustice. Many Victorian writers used literature to expose social evils. ये social evils को expose करने के लिए अपने वर्क को लिख रहे हैं। जो इनकी social evils हैं उसमें poverty है, child labor है, inequality है और injustice है। तो ये सोसाइटी में उस टाइम पर जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में लिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस हाईलाइट्स सफरिंग ऑफ पुअर, क्रिटिसाइज सोशल इंस्टीट्यूशन। जो चार्ल्स डिकेंस है उन्होंने पुअर की जो कंडीशन है उसके बारे में लिखा और क्रिटिसाइज सोशल इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन के जो को क्रिटिसाइज किया है कि सोसाइटी में किस तरह के रूल बन रहे हैं, उससे किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं। तो इसके बारे में उन्होंने अपने वर्क के थ्रू लिखा। Next characteristics is moral purpose. Victorian literature often aim to teach the moral lesson and encourage ethical behavior. Writer believed literature should improve society. तो उन्होंने अपने वर्क को मोरल पर्पज के साथ लिखा। तो वो ये सोचते हैं कि लिटरेचर के थ्रू हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर देंगे। तो इसका मोरल पर्पस भी इसका एक क्या है कि इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये अपनी मोरालिटी के साथ, अपने मोरल पर्पज के साथ अपने वर्क को लिख रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि जब वो वर्क लिखेंगे तो उसको लोग रीड करेंगे तो इस उनके अंदर क्या होगी, मोरालिटी डेवलपमेंट होगी। Conflict between science and religion.
जो ये वर्क है हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इस टाइम पर जो साइंटिफिक वर्क है जैसे कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस वर्क आया, तो यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट बन गया, साइंस और रिलीजन के बीच में कंफ्लिक्ट बन गया। तो साइंस डिस्कवरी चैलेंज द रिलीजियस बिलीफ लीडिंग राइटर्स टू एक्सप्लोर द क्वेश्चन ऑफ फेथ डाउट एंड मोरालिटी। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज होनी स्टार्ट हो गई थी और चैलेंजेस रिलीजियस बिलीफ, और साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से जो रिलीजियस बिलीफ पहले से चले आ रहे थे उनके ऊपर क्वेश्चन उठने लगे। लीडिंग राइटर टू एक्सप्लोर द क्वेश्चन ऑफ फेथ डाउट एंड मोरालिटी। लीडिंग राइटर, जो लीडिंग राइटर थे जैसे कि अपना जो थॉमस हार्डी है और चार्ल्स डिकेंस है, तो इन्होंने सोसाइटी में जो फेथ है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए और उन्होंने जो डाउट है, मोरालिटी है, उनको अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट। इस तरह से हमें यह समझ में आया कि जो अपने अपने जो ये विक्टोरियन राइटर्स हैं उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज को देखा। जब उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज को देखा तो उन्होंने जो पुराने समय से जो रिलीजन है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बिलीफ बने हुए थे तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए, और इससे उन्होंने अपने साइंटिफिक वे से जो ओल्ड बिलीफ है उनको तोड़कर जो रियल साइंटिफिक चीजें हैं उनको अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट किया। इससे जो ह्यूमन बीइंग है उसकी साइकी में चेंज आया। तो ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट था, जो रिलीजन और सोशल चेंज है, रिलीजन और साइंस है, उसके अंदर एक कंफ्लिक्ट है, और ये हमें इन वर्क के थ्रू भी हमें ये दिखाई देता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है अपनी विक्टोरियन एज की। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म एंड प्रोग्रेस। Many Victorian believed in progress, education, and human improvement. Literature frequently reflect confidence in social advancement. Many Victorian believed in progress. जो many Victorian writers थे वो किस में believe करते थे? Progress में believe करते थे, education में believe करते थे, और human improvement में believe करते थे। Literature frequently reflect confidence in social advancement. और जो लिटरेचर है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? कॉन्फिडेंस इन सोशल एडवांसमेंट, कि किस तरह से जो सोशल एडवांसमेंट है वो आए, तो सोशल सोसाइटी में किस तरह से चेंज आए, एजुकेशन, प्रोग्रेस और ह्यूमन इंप्रूवमेंट के बारे में वो ज्यादा फोकस करते थे। तो उनका रियल फोकस इमेजिनेशन और इमोशन नहीं था, बल्कि प्रोग्रेस, एजुकेशन और ह्यूमन इंप्रूवमेंट था। ऑप्टिमिज्म एंड प्रोग्रेस ये तो कर लिया। इंटरेस्ट इन सोशल क्लासेज। Victorian author examined the relationship between upper, middle, and working class and highlighted the class conflict. जो विक्टोरियन राइटर थे, एग्जामिन द रिलेशनशिप, वो एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। तो उसमें एक रिलेशनशिप की जो अपर क्लास के लोग हैं उनका मिडिल क्लास के लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है, और अपर क्लास के लोगों जो लोअर क्लास के पीपल हैं जैसे कि वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो एक क्लास डिफरेंस के साथ उन्होंने अपने वर्क के थ्रू जो क्लास डिफरेंस है और रिलेशनशिप है उसको अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट किया है। मेजर लिटरेरी फॉर्म नॉवेल्स। The novel became the most popular literary form during the Victorian age. Novel इस एज की सबसे ज्यादा जरूरी प्रोमिनेंट फॉर्म थी। Writer used novel to discuss social issues and portrayed realistic characters. Writer used novels. Writers किस चीज का यूज करते थे? Novels का यूज करते थे to discuss social issues, social issue को डिस्कस करने के लिए, and portrays realistic characteristics, और इसके साथ वो realistic characteristics को प्रेजेंट करते थे। जो इसमें इंपोर्टेंट नॉवेलिस्ट है वो कौन है? चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी है, और जॉर्ज एलियट है, विलियम मैकपिस्ट है, और शैरलेट ब्रंटे है, और एमिली ब्रंटे है। पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री कंबाइन रोमांटिक इमेजिनेशन विद रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड मोरल कंसर्न। पोइट्री किस चीज के बारे में थी? कंबाइन रोमांटिक इमेजिनेशन, ये रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में थी, विद रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसमें एक रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट किया गया था, एंड मोरल कंसर्न, और इसके साथ साथ मोरल कंसर्न को प्रेजेंट किया गया था। इसमें जो मेजर राइटर है वो चार्ल्स डिकेंस है। चार्ल्स डिकेंस का जन्म 1812 में हुआ और इनकी डेथ 1817 में हुई। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 to 1892, रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 to 1889, जॉर्ज इलियट 1819 to 1880, थॉमस हार्डी 1840 to 1928, विलियम मैकपिस्ट ठाकरे 1811 to 1863, चार्ल्स शैरलेट ब्रंटे 1816 to 1855, एमिली ब्रंटे 1818 1848,
Oscar Wilde 1854 to 1900, Christiana Rossetti 1830 to 1894. These are the major writers of this age. Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold, Christiana Rossetti. These are the major writers of this age. Drama, although the drama was less prominent than the novel, less prominent सबसे ज्यादा जरूरी थे वो नॉवल थे, और जो ड्रामा था वो लेस प्रोमिनेंट था. लेकिन जो अपना यूजीसी नेट है, स्टेट है, उसमें हमें सभी तरह के जो क्वेश्चन है उनको याद करना है, तो हमें ड्रामा है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी होनी चाहिए. Although the drama was less prominent than the novel, it gained popularity toward the end of Victorian age. लेकिन जो ड्रामा है उसने एंड ऑफ द विक्टोरियन एज के एंड में पॉपुलैरिटी को प्राप्त कर लिया. इंपोर्टेंट ड्रामेटिस्ट आर ऑस्कर वाइल्ड. जो इंपोर्टेंट ड्रामेटिस्ट है वो क्या कौन है? ऑस्कर वाइल्ड है. मेजर विक्टोरियन राइटर्स एंड देयर वर्क्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेजर राइटर्स. चार्ल्स डिकेंस 1812 to 1870. Charles Dickens, regarded as the greatest Victorian novelist, his work focused on the poverty, injustice, and social reform. Charles Dickens, born 1812 to 1817, and his famous work are Oliver Twist, David Copperfield, A Tale of Two Cities, Great Expectation. Alfred Lord Tennyson, 1809 to 1892. Tennyson was the poet laureate of Victorian age and reflected Victorian ideas in his poetry. Alfred Lord Tennyson is also the another most important writer of this age, and his most famous work are Ulysses. His most famous poem is Ulysses. The Charge of Light Bridge. The Charge of Light Bridge is another most important poem by Alfred Lord Tennyson, and in memoriam of Arthur Henry Hallam. In Memoriam is also another most important poem by Alfred Lord Tennyson. We should discuss about all these works. हमें अपने जो वर्क्स हैं, अपने जो एग्जाम है उनकी तैयारी में यूलिसिस, उसकी जो कहानी है, उसका जो टेक्स्ट है, उसकी जो क्वेटेशन है वो याद करनी है. फिर उसके बाद द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिज, इसमें भी हमें उसकी स्टोरी, उसका टेक्स्ट और उसके जो आइडियाज है उसको याद करना है. इन मेमोरियम की वजह से जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो ज्यादा फेमस हुआ. तो इसमें हमें इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हालम, इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हालम, तो उसके बारे में उन्होंने जो लिखा, उसके टेक्सचुअल वर्क है, उनकी क्योटेशन है, वो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबको याद करना है. नेक्स्ट प्रोमिनेंट राइटर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 to 1889. Browning is famous for developing the dramatic monologue. रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए जाना जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है. तो जो अपने रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसने किसका ज्यादा यूज किया था? उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो एक उसके द्वारा यूज किया गया एक फॉर्म है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यूज किया. उसके जो फेमस वर्क है माई लास्ट डिच इज है. माई लास्ट डिच इज में हमें जो स्टोरी है उसको याद करना होगा कि जो ड्यूक है उसको उसकी डचेस है उसकी स्माइल भी पसंद नहीं आती है, उसको दूसरे लोगों के साथ बात करना भी पसंद नहीं आता है, तो आज स्माइल स्टॉप टुगेदर उसने उसको मार दिया जाता, उस जो ड्यूक है वो डचेस को मार देता है. तो इसमें जो माई लास्ट डचेस है, इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के साथ जो ड्यूक है वो अपनी जो वाइफ है डचेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो हमें इसका जो इस पोएम का जो टेक्सचुअल वर्क है, उसकी क्वेश्चन है, उसके सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट इज एंडरटेल शार्ट को हमें इसके भी टेक्सचुअल एनालिसिस करने होंगे. तो नेक्स्ट जो वीडियो भी होंगी तो उसमें हम अलग अलग पोएम का एनालिसिस भी करेंगे. नेक्स्ट फेमस राइटर इज थॉमस हार्डी. हार्डी पोर्ट्रेज द रूरल लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग विद रियलिज्म. थॉमस हार्डी किस चीज को पोर्ट्रे करते हैं? रूरल लाइफ और ह्यूमन सफरिंग को विद रियलिज्म के साथ. फेमस वर्क आर टेस ऑफ द अर्बरवेल एंड फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. टेस ऑफ द अर्बरवेल भी एक बहुत ही अच्छा वर्क है, इसको हमें करना होगा, जिसमें जो टेस है उसकी स्टोरी है कि उसका किस तरह से रेप होता है और लास्ट में उसी की डेथ होती है. तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक मार्मिक, बहुत ही दुख वाली जो स्टोरी है उसको याद करना है. फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, तो हमें फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की जो समरी है, जो टेक्सचुअल एनालिसिस है, वो सारे के सारे हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद करने होंगे. नेक्स्ट प्रोमिनेंट राइटर इज ऑस्कर वाइल्ड. Wilde was known for wit, style, and aestheticism. His famous work are The Picture of Dorian Gray, Importance of Being Earnest, Themes of Victorian Literature, Social Reform, and Injustice. Theme of Victorian Literature
थॉमस ऑस्कर वाइल्ड के फेमस वर्क है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ विक्टोरियन एज. द थीम ऑफ विक्टोरियन एज is industrialization and urban life, social reform and justice, poverty and class division, morality and ethics, religion and doubt, education and progress, family relationship, women's roles in society. These are the themes of Victorian literature. We should remember these. First is social reform and justice, industrialization and urban life, poverty and class division, morality and ethics, education and progress, family relationship, women's role in society. These are the prominent themes of Victorian age. Contribution of Victorian age. The Victorian age made a lasting contribution in English literature, popularized the novel as literary form, encouraged social awareness through literature development and realism in fiction, produced some of the greatest poets and novelists, bridged the romanticism and modernism. It make a bridge between romanticism and modernism, influenced the literature worldwide, and Victorian literature influenced the literature worldwide. Now I reached a conclusion. The The Victorian age was a period of immense literary achievement and social reform. A Victorian writer contributes realism with moral concern and used literature as a tool of examination and society and human nature. The Victorian age was a period of immense literary achievements. जो Victorian age है वो किस चीज के लिए जानी जाती है? एक लिटरेरी अचीवमेंट और सोशल रिफॉर्मेशन के लिए जानी जाती है. A Victorian writer combined the realism with moral concern. ये realism को moral concern के साथ combine कर देती है. Use literature as a tool to examine the society and human nature. वो literature को एक tool के रूप में use करते हैं जिसके साथ society और human nature को वो reflect करते हैं. The works of Dickens and Tennyson, Browning and Hardy and Wilde continue to studies admired across the world. इनके जो वर्क है वो आज भी पूरे पूरे वर्ल्ड में इनको क्या किया जाता है, इनको जाना जाता है. तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है. Because of its rich theme, memorable characters, and social relevance, Victorian age remain one of the most important period of history of English literature. इस तरह से जो इसके नॉवेल्स हैं, इसके द्वारा पोएट के द्वारा यूज किए गए वर्क हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए वर्क हैं, इसकी वजह से जो विक्टोरियन एज है आज भी इसको लिटरेचर में एक बहुत ही ज्यादा जरूरी एज के रूप में जाना जाता है. तो हमें इस वीडियो में क्या पता चला है कि जो हमारे विक्टोरियन एज है इसमें किस तरह के चेंज हुए उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो इसमें कौन कौन से आए थे? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो लोग हैं वो रूरल लाइफ से, जो अपनी एग्रीकल्चर लाइफ है उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए. उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी. द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक पब्लिश हुई. इसकी वजह से लोगों का जो रिलीजन में बिलीफ था वो कम हो गया. और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो ये राइटर्स है वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज्यादा लिखते हैं. तो सोसाइटी में उन्होंने जो भी प्रॉब्लम लिखी देखी उनके बारे में उन्होंने अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट किया. और थर्ड, इसमें ये जो टाइम पीरियड था इसमें ब्रिटेन अपना जो एम्पायर है उसे वर्ल्ड में फैला रहा था. तो इनका जो मेन कंसर्न है वो ब्रिटिश एम्पायर के बारे में लिखना भी था. तो हमने इन सारी की सारी जो बातें हैं इनको अब इस वीडियो के थ्रू जाना. मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाती रहूंगी. थैंक यू, आपने मुझे इतना प्रीशियस टाइम दिया और मैं इस अपने टीचिंग एक्सपीरियंस है इसको भी ज्यादा बढ़ाती रहूंगी. थैंक यू.